नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। प्रदीप जी और मैं, हम दोनों हैं नेशन नाउ पर, और नेशन नाउ है हमेशा हमेशा आपके साथ। आप सबको जय सिया राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, शलोम, वणकम। चाइनीज में नी हाओ, जापानीज में कोनिचिवा। प्रदीप जी, Abariyako Jambo to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. fantastic. I love the way he says it. Absolutely love it. I've stayed there, so Africa, beautiful place. I'm waiting for a day when you'll give a speech in Swahili right Swahili. here in this place. So Pradeep ji, From Priyanka Zanzibar. Gandhi is going to stand from Wayanad. In all likelihood, Priyanka she's Gandhi, likely yes. to win. So Yes, which yes. means both Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi will be in the Lok Sabha. It will be very, very interesting to watch Priyanka Gandhi, Rahul Gandhi, Mr. Akhilesh Yadav, Supriya Sule, Kani Mozi and everybody Yes. else. It will be a real rock and roll Lok Sabha. I It will be mean, nice. we always talked about a strong opposition, and for the first time, we have all stalwarts out there. And all the stalwarts in this have been wiped out, except a few of them, like Prime Minister Modi, Amit Shah. The rest, बहुत सारे ministers they have lost, including Smriti Irani. You talk about entire gang from Maharashtra, 3 cabinet ministers from Maharashtra. Including Pankaj Munde. Yes, they are lost. और इस So, बार तो पंकजा मुंडे जी के हारने की कोई वजह ही नहीं दिख रही मेरे को, तो मतलब वो कैसे हार गई? Unless and until the entire Maratha vote got together and decided the to go Maratha against her. votes, yes, perfectly right, sir. The Maratha votes got together and saw to that she will But not they should win. have seen that coming. I don't know how they didn't see that coming. That means Sharad Pawar's game kind of succeeded. So she only gained in Parli, where Ji. I think she and both Dhananjay Munde have worked very hard. Yes. Rest, all those constituencies, they have lost, most of them. So, Oh, yeah. And that couldn't compensate. And we have some very tragic news as well. Therefore, yesterday the accident at Siliguri. This comes after 1 year after the accident at Balasore. It's terrible. I mean, what's happening to the railways? It's all right. You know, Pradeep, I've been saying this for a long, long time. If you actually read the railway safety report of the GD Khosla committee, he said about 30 years ago that you need to relay the tracks. The tracks need to be relayed. My point is, we can have as many great trains as you want. आप जितनी नई आप ट्रेन्स जो हैं आप शुरू कर दें, कुछ भी कर दें, जब तक आपकी रेलवे ट्रैक्स जो हैं वो आप इम्प्रूव नहीं करेंगे, तब तक जहाँ तक सुरक्षा का प्रश्न है उसके ऊपर उसका कोई समाधान नहीं हो सकता. बिकॉज द ट्रैक्स कैन अब्जॉर्ब ए ओनली दैट मच ट्रैफिक and B can only permit you at that much speed. So, which is the reason why, if you look at the way the bullet train project is going on right now, right very close to us, the whole track has to be laid. It has to be completely new. And the wear and tear, the metal fatigue on these tracks, it's terrible. I Sir, mean, एक चीज है कि वो सुरक्षा कवच जो बोलते कवच, what happened to that कवच? सर वो कवच अभी काम नहीं कर रहा है. वो कवच कवच बहुत पहले लगाया गया था. Yes, yes. उसकी जगह पर एक नया सिस्टम आया है. हाँ. और वो नया सिस्टम जो है वो बहुत स्लोली इम्प्लीमेंट हो रहा है. अब क्यों हो रहा है? वो रेलवे सिस्टम्स को, बाकी जो रेलवेज के अंदर जो आज की तारीख में जो तकलीफ हो रही है, क्योंकि क्या था पहले, क्या था रेलवेज का, प्रदीप जी पता नहीं है इस विषय के बारे में आपको मालूम है कि नहीं, कि रेलवेज के पहले 2 एग्जाम हुआ करते थे. एक जनरल एग्जाम हुआ करता था और एक इंजीनियर्स के लिए हुआ करता. इंजीनियर्स अलग थे और जो जनरल कैटेगरी के लोग थे वो अलग थे. उसके बाद इन दोनों को मर्ज कर दिया गया, जिसकी वजह से यू आर नॉट गेटिंग द क्वालिटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स दैट यू रिक्वायर राइट नाउ इन द रेलवेज. I think perhaps it's time to go back to the old system, and maybe, just maybe, the railway budget could be revived. Perhaps. How are you talking about head-on clashes of trains? I mean, what's happening? Head-on clashes of trains, train collisions. Now this shows. A goods train rammed into a passenger How train. can this happen? तो It should कौन not सा happen. कवच है, कौन सा, how are you going to protect each train, and how do you know if the same railway track पे head-on clashes हो रहा है, collision हो रहा है? I mean, that's dangerous. But still, I would say that the Indian Railways safety record is quite marvelous, by the way, considering the number of trains that we run. Pradeep ji, the number of accidents are less than 1.5%. And most of them are Very happening in frankly. the east. That is a cause of concern. The cause of concern is that is because the Eastern Railway and the Northeastern Railway
Okay, this has taken place in Siliguri. That has not been upgraded yet. उसकी upgradation अभी बाकी है, sir. But the traffic has not come down. You can't, bring the traffic down. वो हर जगह पे हाहाकार मच जाएगी अगर आप ट्रैफिक को नीचे लेके आएंगे. In any event, at the moment with us, we have our very dear friend Mr. Abhishek Mishra, man about town, and you can see him with all the big leaders and celebrities all over the country and all over the world. Mr. Abhishek Mishra right now with us. Abhishek Mishra ji, namaskar. प्रणाम प्रणाम नमस्कार. Abhishek Mishra ji, namaskar. Oh, what a lovely kurta. Look at that kurta. Oh, isn't that lovely? He comes out with his beautiful colors all over the place. Jai Siya Ram, Har Har Mahadev, sir. हर हर महादेव हर हर महादेव. So, congratulations to you, Modi 3.0, even though we are all somewhat disappointed at the fact that the BJP did not cross 300 seats. Even I had said that the BJP would get anywhere between 305 to 335. Even I was proven wrong. But all the same, Modi ji, third consecutive time as Prime Minister, that itself, by the way, is a huge achievement. People don't realize it, but it's a very, very big achievement. What are your hopes? What are your hopes from Modi 3.0? Abhishek Mishra ji, बताएं. See, Modi ji's vision, he has already clearly stated that he wants India to be a developed nation by 2047. Ji. So Modi 3.0 is a continuation on that path of making India a developed country, and whatever infrastructure issues, whatever manpower, whatever manufacturing bases have to be set up, all those things, and how we can best utilize our manpower, how to give them skill training, how to make the economy more integrated with the global economy. So these are the key focus areas for Modi 3.0 to set India on the path of further development. राइट अभिषेक मिश्रा जी, लेकिन सबसे बड़ी बात है यहाँ पे 2-3 स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में बात करें. अगर अभी महाराष्ट्र में क्या हो रहा है कि एक जो ओबीसी एजिटेशन है, ओबीसी आंदोलन है, उसने दोबारा तूल पकड़ लिया है. हमारे बड़े अच्छे मित्र में से लक्ष्मण हाकी जी, वो आज की तारीख में उपोषण पर बैठ गए हैं. वो कहते हैं कि साहब जो वीजेएनटी हैं, उनको वंचित जनजाति नोमैडिक ट्राइब्स जो हैं, उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए. वो बैठ गए वहाँ पे. तो अभी वो टायर वायर जला रहे हैं उधर उस तरफ. और नॉर्थ में क्या है, वो नीट का जो मैटर है वो आ गया है हर जगह पे. तो मतलब पार्लियामेंट शुरू होने के पहले मामला गर्म किया जा रहा है, मुझको ऐसा लग रहा है. आप जरा बताएं इसके बारे में, अभिषेक मिश्रा जी. अच्छा सवाल है आपका. देखिए, जब देश में लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, तो मुद्दे जो है, विषय जनता के हमेशा सामने आते हैं. ये नेचुरल प्रोसेस है. अब सरकार के नाते हमारा दायित्व है कि उन समस्याओं का शीघ्र समाधान, और वो भी समाधान इस प्रकार से कि सभी जितने भी उसमें अफेक्टेड लोग हैं, उन सबको लगे कि न्याय हुआ हमारे साथ. जितने भी उसके लोग हैं जो जिनका उस पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है उस समस्या का, उनको न्याय प्राप्त हो. ये सरकार का दायित्व है और उसी दायित्व को हम निभा रहे हैं. तो समस्याएं हैं. अब धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा कि नीट में सुधार किया जाएगा, समस्या हुई, हम हल करेंगे. उसी प्रकार जम्मू कश्मीर में जब आतंकवादी घटना घटी, तो माननीय गृह मंत्री जी और सारे जो रक्षा क्षेत्र से जुड़े हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, देश के प्रमुख, सारे वहां बैठे. तो हर समस्या का समाधान, शीघ्र समाधान, और ऐसा समाधान जिसका दीर्घ काल तक कोई ना कोई प्रभाव अच्छा हो, वो किया जा रहा है. तो समस्याएं हैं, वो चुनौती है, सरकार का काम है उनका हल करना, घबराना नहीं. जननायक कांग्रेस का कहना है, जननायक राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी जी, उन्होंने नाम रखा है महंगाई मैन मोदी, 15-month हाई वेयर इन्फ्लेशन इज कंसर्न. कमर तोड़, महंगाई ने तोड़ा है कमर. 15 महीने का रिकॉर्ड है. इस प्रकार continuous surge where food articles are concerned, pulses are concerned, vegetables are concerned, onion, potatoes. स्टैटिस्टिक्स देके कांग्रेस, राहुल गांधी जो अपने आप को जननायक कह रहे हैं कांग्रेस, तो he says महंगाई मैन मोदी जी can't control price rise and inflation. Abhishek ji, now this is a matter of concern. Now, is the government failed to control inflation and price rise? See, currently the seat strength of BJP is 240, NDA 293. The seat strength of Congress is 99. We are 240, they are 99. So you can understand whether
price rise or inflation or whatever Rahul Gandhi is saying, the common man still has not accepted to a large degree because we are 240, he is 99. So he must be aware of the reality. Majority of India still rejects the politics of Rahul Gandhi, which is just to create falsehood, anarchy, discord. So he has been trying, let him try. राहुल गांधी जी ने फर्दर कहा कि कांग्रेस एंड द इंडिया अलायंस हैज डिस्ट्रॉयड द आइडिया ऑफ मोदी. इट वाज ऑल मोदी जी, मोदी 1, मोदी 2, मोदी 3, मोदी गारंटी. तो इंडिया, तो कांग्रेस एंड इंडिया हैज डिस्ट्रॉयड द कंसेप्ट ऑफ आइडिया ऑफ मोदी और एक तानाशाह से मोदी जी को डेमोक्रेट बना दिया. आज मोदी जी इज एन इंक्लूसिव पॉलिटिशियन, ही इंक्लूड्स एवरीबॉडी. मोदी जी आज संविधान के सामने सर झुकाता है, माथा टेकता है. He says constitution is supreme for him. Now this change that Modi ji they have enforced it on Modi, that is Congress is saying, and Rahul Gandhi has played a vital role in softening Prime Minister Modi from a dictator to a democrat. Abhishek Mishra ji. See, the candidate for Prime Minister was Modi ji. Today the victorious Prime Minister is Modi ji. So definitely it's a victory of Modi ji. Third time after Jawaharlal Nehru, this is the first time that a Prime Minister has been consecutively sworn in for the third time. So he may have his myths, Rahul Gandhi may live in an illusion world that he has destroyed the myth of Modi ji, but the fact is, Modi ji was Prime Minister prior to election, Modi ji is Prime Minister after the election. This is the reality. Rahul Gandhi should face the reality. But as far as Mr. Rahul Gandhi is concerned, the Congress is concerned, there seems to be a revival of the Congress because nobody expected that the Congress would do so well. They are 99 and plus 2, I think. The Sangli gentleman and the gentleman from Ladakh has also extended support to the Congress and they are just waiting to join the Congress again. So they say they are 101, irrespective of all that. Now, did you expect the Congress to do so well? I didn't, very frankly. I thought the Congress would stop at 40, 45. Mr. Abhishek Mishra. See, in a democracy, as Modi ji said, कि ये थोड़ा हार जीत चलता रहता है. In a democracy, the people are entitled. Congress made some false claims regarding constitution, etc. Some of the voters, they could not understand the designs of Congress, the evil designs. So Congress has managed to increase the seat by 50. Congress has reached 99 or 100 only. Congress still is very weak compared to BJP. Our vote share is still 36%, 37%. They are 21%. 15% vote share gap between BJP and Congress. So yes, they made some false promises because that they increased their seat tally. But I think this is not long-lasting method because people will eventually see through your false promises. And then next time you will again fall back. Yes, but the only thing is, I agree with you as far as the constitution bit is concerned, but the fact remains that as far as Uttar Pradesh is concerned, in Uttar Pradesh, there were lots and lots of other issues. For instance, the farmers issue, MSP, and most importantly, Agniveer. The Agniveer scheme played a huge part because people want to go back to the old recruitment method in the armed forces, which is why the Armed Forces Committee has actually recommended that the Agniveer scheme should be extended from 4 to 7 years. Now, why did it take so long for the BJP government, for the Modi-led government to take a look? Because this was coming. Everybody knew that there was a lot of dissatisfaction. Abhishek Mishra ji. See, with regards to Agniveer, it's a part of our defense forces and we must be sensitive about it. Rahul Gandhi makes open statements which is not good. Even the election commissioner had said it, please don't politicize this issue. So with regards to the Agniveer, the army and all the three services, the Air Force, the Navy and the CDS, they will all come together and whatever improvements have to be made, they will make. See, on the policy, core policy is for the benefit of a military. Okay. So they will make, it will not be politicized, it will be made in a sensitive manner. It is a very serious matter. It's about finally about the protection of the country. It's not about party politics. It's a sensitive matter. Sir, there are 6 Gorkha regiments. No recruitment is taking place over there. There are 30,000 vacancies in the 6 Gorkha regiments that we have. The Nepal government has said that they will not be participating
in the Agniveer program. In fact, now there are alarming reports that the government of Nepal might actually be signing a treaty with the government of China for recruitment of Gurkhas into the Chinese People's Liberation Army. So we might have a situation where our Gurkhas might be facing Gurkhas in the Chinese army. And that's all thanks to Agniveer. Abhishek Mishra ji. With regards to Nepal and China, only the foreign ministry can comment technically. Party spokesperson cannot comment about Nepal and China. What I can say is that the government of India will take whatever steps necessary to strengthen our armed forces, as well as whatever India-Nepal relation remains the primary. Even our Honorable Prime Minister has again and again stressed on the long-standing relation between India and Nepal. So, the citizens of India must not be worried. The focus on strengthening our military and improving Indo-Nepal relations, both are of paramount importance to us, both are of strategic importance to us, and we are cognizant of the problems we have and how to. Pradeep ji. Abhishek ji, where Maharashtra is concerned, the BJP's loss to 9 seats, down to 9 seats. Will Devendra Fadnavis ji bole ki I will resign, but will it reflects on him because जो शहीद हो गए उनमें पंकजा मुंडे, मुनगंटीवार, राव साहेब दानवे, Bharati Pawar, Rana, Navneet Rana, Kapil Patil, 3 are cabinet ministers in the center, 1 cabinet minister in the state. Doesn't it reflect on Devendra Fadnavis ji that इतना अच्छा performance के बाद इस यहाँ पर पहुँचे कि you have reduced to virtually 9 seats From 23. From 23. An absolute dismal performance. Now, आज भी meeting हो रहा है, but will the center have full faith in Fadnavis and ask him to continue because he's offered to resign? See, the party high command, it will take a call on that, on Devenji. He's our tallest leader in Maharashtra. It's a matter for the party high command to decide on that. So I will not comment upon that. With regards to the 9 seats, you have to understand in democracy, there was a time when Atalji was there that we were reduced to 2 seats. So Bharatiya Janata Party has seen its ups and downs. So in one particular election, if we have come down, I don't think it is a matter of great distress. We will definitely bounce back. We will once again retain the top position in Maharashtra. I am convinced about that. Yeah. Wonderful. But Abhishek Mishra ji, एक दूसरा बात यह है कि Uddhav Banasaheb Thackeray ji, their party also has not performed well. They fought in 21, got 9 seats. BJP has told Uddhav Banasaheb Thackeray कि आपको इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है. You need to introspect. आप हमारे साथ थे तो आपको 18 सीट मिला था. आपका फायदा MVA को हो गया है, but वो MVA का फायदा आपको हुआ नहीं है. Sharad Pawar has excelled 8 out of 10 seats. Indian National Congress 13 out of 17 that they fought. Now they have all gained, but Uddhav Thackeray has lost. Now BJP has asked Uddhav Thackeray for introspection. How do you see, will all these things work for the Vidhan Sabha elections, which is going to be probably in October? See, Uddhav Thackeray, he has the worst strike rate among the Mahavikas Aghadi. Contested 21, he won 9. It's a strike rate of around 46%. So Uddhav Thackeray must focus upon his own political issues. Why are the people of Maharashtra not supporting him? And he must try to rectify the problem. There's nothing to be too buoyant for Uddhav Thackeray. But as far as Mr. Uddhav Thackeray is concerned and the people around him are concerned, they say that we were given a new party symbol, our name was taken away, our symbol was taken away. In spite of that, we have won 9 seats, which is very creditable. And they may actually win a 10th seat. That's what they say. क्योंकि मुंबई नॉर्थ वेस्ट में जो हमारे मित्र हैं रविंद्र वाइकर जी, वो सिर्फ 48 वोट से जीते हैं. और वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि पोस्टल बैलेट के अंदर कुछ धांधली हुई है. और अभी तो एक अखबार में ये भी आया था कि कोई फ़ोन है जो ईवीएम को अनलॉक कर देता है. मतलब ये कैसा फ़ोन है मुझे मालूम नहीं है, शायद आपको मालूम होगा अभिषेक मिश्रा जी. ये कौन सा फ़ोन होता है यार जो ईवीएम को अनलॉक कर देता है? लेकिन उनका ये एक मानना है
कि हमारा सिंबल ले लिया गया, नाम ले लिया गया, उसके बावजूद हमें 9 सीटें मिली हैं। कांग्रेस ऑफ कोर्स हैज डन रियली एंड ट्रूली वेल। तो इसके पीछे आप क्या कहेंगे अभिषेक मिश्रा जी? देखिए, अब वो उस पर FIR एक फाइल हुआ है कि क्यों व्यक्ति मोबाइल लेके घुसा था। तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि कोई EVM में धांधली। इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, रिटर्निंग ऑफिसर ने प्रेस रिलीज इशू किया है सर। नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कल किया जी। 15, और उन्होंने स्पष्ट कहा कि EVM और मोबाइल का कोई निर्णय नहीं था। ठीक है, तो EVM नहीं ओपन हुआ है, और मिड डे अखबार ने अपॉलॉजी आर्टिकल भी पब्लिश किया कि हमारा वो आर्टिकल मिसलीडिंग था। हाँ, ये सच है कि एक व्यक्ति गया था मोबाइल फोन लेके, वो था अंदर, मोबाइल फोन किसी का था, तो इसकी जांच होगी। लेकिन वहां है गलती मोबाइल फोन किसी का, लेकिन वो EVM से संबंधित था। EVM का वो मिड डे ने भी, जिस अखबार ने छापा था, उसने भी गलती स्वीकार की। तो थोड़ा व्यूअर्स को ये क्लैरिफिकेशन होना चाहिए कि कोई EVM नहीं खुला है मोबाइल के द्वारा। अब इस वक्त रविंद्र वाइकर जी विजेता हैं, और हमारा स्पष्ट मानना है कि चुनाव जो है फ्री एंड फेयर हुआ है, निष्पक्ष हुआ है। तो इसलिए उस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। जो उद्धव ठाकरे के लोग टिप्पणी कर रहे हैं कि कोई धांधली भी है, वो उनका अधिकार है, वो जाए, चुनाव आयोग जाए, कोर्ट जाए। तो सर, लेकिन जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी तो दूसरी सीट तो हार गई अपनी उज्जवल निकम वाली जो सीट थी, वहां पर तो वर्षा गायकवाड़ जी बड़े आराम से जीत गई। तो लोग तो अब ये पूछ रहे हैं कि भैया पूनम महाजन जी को ही एक बार रिपीट कर देते तो वो तो जीत जाती। उज्जवल निकम जी की भी, और मिहिर कोटेचा, हमारे दो जो कैंडिडेट्स थे, मिहिर कोटेचा मुंबई नॉर्थ ईस्ट से थे, दो जगह पे भाजपा को जितनी सफलता में उम्मीद थी, अपेक्षित थी, वो नहीं प्राप्त हुई। लोकतंत्र में कई बार कैंडिडेट अपनी बात सही से नहीं पहुंचा पाता। मोदी जी के प्रतिकूल है, कैंडिडेट अगर नहीं पहुंचा पाया या विश्वास या आशीर्वाद नहीं प्राप्त कर पाया, उसका एक ही विकल्प है लोकतंत्र में कि आप दोबारा जनता को जाएं और अपनी बात रखें कि देखिए ये हमारा लक्ष्य है, विकास का लक्ष्य है, राष्ट्र के लिए लक्ष्य है, हमें मौका दीजिए। तो हम दोबारा जाएंगे, मौका मांगेंगे। अभिषेक मिश्रा जी, आपने 2 सीटों की बात करी थी भारतीय जनता पार्टी को, जब 2 सीटें मिली 1984 में। मुझे अभी तक याद है, 2 सीटें मिलने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के एटलीस्ट दिल्ली में जो लोग थे, मैं तो दिल्ली में था उस वक्त, हमारे मदनलाल खुराना जी, विजय कुमार मल्होत्रा जी, केदारनाथ सानी जी, सब लोगों ने, कोई ऐसा शख्स नहीं है जो अपने घर पे बैठा जिसने स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग्स ना करी हो, जिसने एकदम सरकार को घेरने में जरा सी भी हिचकिचाहट करी हो। सब लोग बाहर आ गए, भले ही 2 सीटें आई हों, जिसकी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति में है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और तीसरी मर्तबा मोदी जी प्रधानमंत्री बने। क्या महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा देखने को मिलेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर जनता के संपर्क करेगी, संपर्क में रहेगी और सबकी उलझनों का समाधान निकालने की कोशिश करेगी? अभिषेक मिश्रा जी। देखिए, कार्यकर्ता हमारे मेहनत कर ही रहे, नेता हमारे गांव तक, हर रोड गली तक जा रहे हैं। विपक्ष ने कोई भ्रामक प्रचार किया, वो अगली बार जो है विपक्ष का पोल खुल जाएगा। हम जाएंगे, जनता को बताएंगे, इनकी झूठ में मत आइए। तो हमारी मेहनत है। थोड़ा कई बार लोकतंत्र में विपक्ष कुछ छल छलावा कर लेता है उसका, लेकिन कोई लंबे समय तक असर नहीं हो पाता। भाजपा को दोबारा समर्थन, जनता का आशीर्वाद प्राप्त। तो जहां तक के स्टेट इलेक्शंस का प्रश्न है, विधानसभा का जहां तक प्रश्न है, क्या उसके लिए अब तैयारी शुरू हो गई है? क्योंकि आज मीटिंग थी एक दिल्ली में, अब उसका क्या नतीजा निकला है मालूम नहीं है, क्या परिणाम निकला है मालूम नहीं है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जी ने ये साफ कर दिया है अपने, उनके जो बहुत क्लोज एसोसिएट हैं उनको, कि वो पार्टी का काम करना चाहते हैं। आपको लगता है कि ऐसा कुछ होना चाहिए कि उनको डिप्टी सीएम की पोस्ट से फ्री कर दिया जाए और एक बार फिर उनको पार्टी संबंधित कामों में लगने का उनको परमिशन दे दी जाए, उनको इजाजत दे दी जाए? अभिषेक मिश्रा जी। जी, देखिए,
देवेंद्र जी हमारे महाराष्ट्र में टॉलेस्ट लीडर हैं जनता पार्टी के। उन्होंने 5 साल बहुत सफल सरकार चलाई है जब वो मुख्यमंत्री थे। देवेंद्र जी जिस रूप में रहेंगे पार्टी का नेतृत्व करेंगे, वो किस रूप में पार्टी का नेतृत्व करेंगे वो सेंट्रल लीडरशिप तय करेगी। हमारा तो कार्यकर्ता के स्तर पे सदैव चालू रहता है जनता से जुड़े रहना। विधानसभा चुनाव के नाते भी हमारा काम चालू है, और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक कैडर बेस्ड पार्टी है, हम हमेशा जुड़े रहते हैं। हमारा काम चालू है और विजय प्राप्त होगा। अभिषेक मिश्रा जी, आज एक ऐसा सीन देखने को मिला जहां नाना पाटोले जी कांग्रेस प्रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र, उनके पैर कांग्रेस के वर्कर से उन्होंने धुलाए या धोया, जो भी है वो एक सीन था। बीजेपी आलोचना शुरू कर दिया। बीजेपी सेज दिस इज व्हाट द कांग्रेस डिपिक्ट्स, दिस इज व्हाट द कांग्रेस इज फॉर एरोगेंस। और मोदी जी के दूसरे उन्होंने दिखा कि मोदी जी खुद अपने हाथ से कंजर्वेंसी वर्कर्स के पैर धोते हुए, और राम मंदिर में जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, जो गरीब से गरीब लोग हैं उन पे फूल बरसाने का बीजेपी का कहना है दिस इज हाउ वी ट्रीट आवर पीपल, हाउ वी ट्रीट द पुअर एंड डाउन ट्रोडन, और ये कांग्रेस का एरोगेंस है ना। हाउ डू यू दोनों का तुलना आप कैसे करते हो? बीजेपी आलोचना शुरू कर दिया है नाना पाटोले जी का। देखिए, मोदी जी ने चुनाव के दौरान कहा था कि ये कांग्रेस का एक मुगलवादी सोच है, मुगल साम्राज्यवादी सोच। यही है पटोले का मुगलवादी सोच, क्या हो मेरा पांव धो लो। अब सोचिए 14 सीट आ गया लोकसभा में, 13 सीट और एक समर्थित सांगली इंडिपेंडेंट 14 जी, तो पांव धुलवाने लग गए। ये तो इनका सामंतवादी सोच ऊपर आ गया, मुगलशाही सोच, नवाबशाही सोच आगे आ गया। अगर गलती से कुछ और सीट मिल जाते तो नाना पटोले क्या क्या नहीं कर देते। देखिए, यही उदाहरण है कि इतने में ही इतने पे आ गए कि आओ मेरा पांव धो, मैं राजा हूं तुम्हारा, मालिक हूं तुम्हारा। ये कांग्रेस बोलती है लोगों को लोकतंत्र। कांग्रेस असली अगर कोई जो जनता को नौकर गुलाम मानती है तो कांग्रेस है। सामंतशाही कांग्रेस के पास है। पटोले ने आज दिखा दिया कि मैं सर, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है। जब भी कांग्रेस जरा स्ट्रांग हो जाती है तो उसके तेवर बदल जाते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। जब 14 सीट पे पांव धुलवा रहे हैं सर, समझ रहा हूँ। जब वो बेचारे थोड़े कमजोर होते हैं तो वो टोटली डेमोक्रेटिक हो जाते हैं। लेकिन मैं आपसे कुछ और पूछना चाह रहा हूँ सर, ये अयोध्या का आप विश्लेषण कैसे करेंगे? बिकॉज आई रियली वांट टू नो व्हाट यू थिंक, बिकॉज दैट कम्स एज अ बिग शॉक फॉर मी कि लल्लू सिंह जी हार गए। ये कैसे हो गया सर? अवधेश प्रसाद जी जीत गए। देखिए जी सर, उत्तर प्रदेश में ये सत्य है कि जितनी हमें सफलता चाहिए थी थोड़ी कम मिली, बात सत्य है। अब सीट वाइज तो आंकलन नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश ओवरऑल स्टेट में यस हमें थोड़ा सा नुकसान हुआ, जैसे महाराष्ट्र में हुआ है। उसके कारणों का अभी समीक्षा हो रहा है और उसको बहुत सीरियसली उसकी वजहों का एनालिसिस होने के बाद फिर हम उस पर करेक्टिव मेजर ले पाएंगे। तो इस वक्त एनालिसिस, समीक्षा और फीडबैक लेने का दौर चल रहा है। तो मैं एक अयोध्या लोकसभा नहीं, हम तो उत्तर प्रदेश में पिछली बार 62 थे, अभी 33 है जी, सीट्स का लॉस हुआ है। जैसे महाराष्ट्र में 19 सीट्स हम हारे, वैसे यूपी में 26। तो इसके लिए एक एक सीट नहीं बोल पाऊंगा मैं। हमें स्टेट लेवल पे जनता का थोड़ा सा डेफिनेटली वहाँ ओबीसी वोट्स में थोड़ा SC वोट है। महाराष्ट्र में तो SC दोनों है, यूपी में सिर्फ SC वोट है। तो उसमें थोड़ा सा इसमें दिखा कि थोड़ा सा शायद कुछ कारणों से विपक्ष के मिसलीडिंग प्रचार के वो ये वोट थोड़े विपक्ष की ओर ट्रांसफर हो गए। लेकिन और इसमें डिटेल्ड डीप एनालिसिस किया जाएगा, थोड़ा और टाइम लगेगा। Allegations of Yogi asking for 40 seats, only 4 given. वहां मतभेद था। दूसरा, RSS refused to work because JP नड्डा जी ने कहा कि RSS की जरूरत नहीं है। तो RSS योगी together big factor, never worked on the ground। अभिषेक जी, ये लूज टॉक, रूमर्स, देखो मैं प्रवक्ता हूँ, ऑफिशियल प्रवक्ता हूँ, मैं लूज टॉक और रूमर्स पे ध्यान नहीं दे सकता। ठीक है, मैं ऑफिशियल बात कर सकता हूँ कि अभी फीडबैक का दौर चालू है।
फीडबैक के बाद कोर्स करेक्शन होगा आफ्टर फाइंडिंग आउट व्हाट इज द एग्जैक्ट कॉजेस. ये सब लूज टॉक, रूमर, आई कैन नॉट रिप्लाई टू दैट. तो मोहन भागवत जी की स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं सर? और ठीक उसके है. बाद रतन शारदा जी का आर्टिकल ऑर्गेनाइजर में, और उसके बाद आदरणीय सामान्य इंद्रेश कुमार जी की स्पीच. देखिए, ये सब इंद्रेश जी परम, मोहन सरसंचालक जी परम पूजनीय हैं, इंद्रेश जी परम पूजनीय हैं. ये सब इन्होंने पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित किया है. जी. सब मार्गदर्शक हैं श्रेष्ठ स्तर के. तो इनकी हर बात को गंभीरता से लेके अगर चूक हुए तो सुधार किया जाएगा. जी, क्योंकि दिस रियली इज़ माय फाइनल क्वेश्चन, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी पहले प्रधानमंत्री थे और हैं हिंदुस्तान के, जिन्होंने सबसे पहले ये कॉल दी कि भाई देखिए, पासमंदा मुसलमानों के बारे में आप ज़रा ध्यान दें. जो ओबीसीज़ हैं मुसलमानों में और लोअर कास्ट मुस्लिम्स हैं, जो अजलाफ हैं. अशराफ तो अपने आप को मानते हैं कि भाई हम तो टर्क्स और अफ़गान्स और अरब्स की औलाद हैं. जो अजलाफ हैं वो हिंदुस्तानी हैं, उनके बारे में ज़रा कुछ काम कीजिए. उसके बाद आरएसएस का माइनॉरिटी सेल बना, जिसमें इंद्रेश कुमार जी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई. लेकिन ये सुनने में आया है कि बीजेपी ने ज़्यादा उसको तवज्जो नहीं दी, और यही एक वजह है कि पूरा मुस्लिम वोट जो था आपके खिलाफ गया है इस बार. अभिषेक मिश्रा जी. देखिए, इस तरह से भाजपा राजनीति नहीं करती. माइनॉरिटी वोट्स, मेजॉरिटी वोट्स. जनता का थोड़ा यूपी में समर्थन कम मिला, समर्थन दोबारा अच्छे से मिले, इसके लिए हम प्रयास और मेहनत करेंगे. इतना सरल विषय. देखिए, मैं जो है इस पे मैं टिप्पणी नहीं करूंगा माइनॉरिटी पॉलिटिक्स पे. Akhilesh Yadav says PDA succeeded. PDA, पिछला दलित अल्पसंख्यक का जो हमने एक फॉर्मूला निकाला था, that has flowed to BJP. तंत्र, हाँ, एडवोकेट प्रदीप जी, लोकतंत्र है, ठीक है. उनको कुछ वर्ग ने वोट किया, उनको ठीक है. हमें भी बार बार जिता रही है यूपी में जनता. थोड़ा लोकसभा में उनको वोट किया. इसका ये अर्थ नहीं है कि उनका सोशल कॉम्बिनेशन या उनके दावों को पूरा विश्वास कर लिया. ठीक है, कई बार जनता दूसरों को भी अवसर देती है, अपॉर्चुनिटी देती है. अखिलेश यादव को ज्यादा घमंड में नहीं फूलना चाहिए. उन्होंने कहा कि सिर्फ 5 सीट हमने यादव को दिए. ओनली 5 सीट फॉर यादव. परिवार से दिए ना, अपने फैमिली मेंबर को दिए जी. पत्नी को दिया, भाई को दिया, चचेरे भाई को दिया, शिवपाल जी के बेटे को दिया. तो ये कि दूसरों को बेवकूफ बनाए. अपने घर के यादवों को तो दिया ना, अपना घर तो भर लिया. कह रहे कि मैंने बाकी यादवों का नहीं भरा, रे अपना तो भर लिया. अखिलेश यादव कहीं और मूर्ख बनाए लोगों को. इस बार थोड़ी यूपी की जनता को छलावा में फंसा पाए, लेकिन ठीक है, जाने दीजिए. तो अभी प्रियंका गांधी जी वायनाड से लड़ेंगी सर. सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, ऑफ कोर्स शी हैज टू विन. देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट देयर विल बी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी एंड अखिलेश यादव opposing you in the Lok Sabha. प्रियंका गांधी जी को के वायनाड में अपनी उम्मीदवारी भरने के लिए आप क्या कहेंगे? एक सीनियर डिप्लोमेट से मीटिंग है, 7:30 का टाइम था, मैं 5 मिनट एक्स्ट्रा बैठ चुका हूं. मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा. But one sentence about Priyanka Gandhi. You always have something nice to say, especially about Priyanka and Rahul Gandhi. I know you are a big fan of especially Rahul Gandhi. बोलिए ना सर, please, one line. First of all, I'm not a fan. Everybody knows I'm joking. Listen, everybody knows I'm joking. You don't need to tell people. Yeah, please. Everybody who is listening should ever consider that. Okay. One line about Priyanka Gandhi fighting from Wayanad, please. Priyanka Gandhi, wife of Robert Vadra ji, the man who is involved in corruption cases. So corrupt man's wife is trying to get some safety by contesting elections. She wants to save Robert Vadra from the cases, ED cases. Let her try. See, Priyanka Vadra, you are focusing Priyanka Gandhi. My focus is Priyanka Vadra. जी. Priyanka Vadra trying to save Robert Vadra. जी. So aren't you going to wish her all the best? See, Robert Vadra is involved in corruption. If Robert Vadra was not a corrupt man, I would have wished her as a citizen of India. As a lady, as a female, I would have wished her. But because she is trying to save a corrupt man, Robert Vadra, so I cannot support corruption, I apologize. Right, we won't hold you up any longer.
Please go ahead for your meeting and thank you very much for joining us. Always a pleasure talking to you and lovely kurta by the way. Really and truly nice. Thank you very much. Jai Siya Ram. We need to discuss Venus also. शुक्र का प्रभाव जय सिया राम। बहुत बहुत ज्यादा है, कुछ ज्यादा ही दिख रहा है सर। खुद हम छीन लेते थे वो। अब देखो शुक्र का ये प्रभाव है कि जो वहां पे अन्य राष्ट्र के लोग हैं वो भी समर्थन दे रहे हैं। जी क्या बात है सर। ऑल द बेस्ट सर, थैंक यू वेरी मच। प्रणाम प्रणाम। जय सिया राम। Well, that's a very good job trying to defend the BJP, but the fact is the BJP suffered a body blow in Uttar Pradesh and in Maharashtra and of course even in Rajasthan. Let's be very clear on that, there is no doubt. But, well, as the BJP... Some of the BJP observers said that Rahul Gandhi Rome भागेंगे चुनाव के बाद। Why observers? प्राइम मिनिस्टर ने खुद बोला तो शहजादे की टिकट बुक है इटली के लिए। तो शायद वीजा नहीं मिला या वीजा रिजेक्ट हुआ या नहीं, वो प्रधानमंत्री जी को जाना था ना इटली, इसलिए नहीं गए। वो क्या है चलिए इस वक्त हमारे साथ हैं। अब क्या है कि सर दिल्ली में